Hi, friends and traders. Welcome to Trending Sutra. My name is Amit, and today we are going to discuss about macro and micro factors affecting market in the short term. For our monthly outlook, technical outlook in Nifty and Bank Nifty, please refer our video, which is available in the description. So this week, instead of coming out with our regular technical outlook, today we are going to discuss about few factors that is going to drive the direction in market. We'll give this video mix of English and Hindi. So stay with us till the end. And if you have not subscribed our channel till now, kindly do so. Let's come back to the market. Despite last week panic selling, contrary to general consensus, market does not fall much beyond towards the downside. 17,250 और 300 के आसपास मार्केट ने काफी सपोर्ट किया एंड इट बाउंस बैक वेरी शार्पली. इनफैक्ट 17,700 के आसपास हमने निफ्टी को पुल बैक करते हुए भी देखा था. अगर हम एक ब्रॉडर पिक्चर के बारे में बात करें तो निफ्टी हैज आउट परफॉर्म इन द बैकड्रॉप ऑफ ग्लोबल मेल्टडाउन एंड अंडरस्टैंड इट विद द नंबर्स. S&P till year is down by more than 18%, Nasdaq 27%, Dow Jones 10%, whereas Bank Nifty among all the major indices has shone like a warrior in a battle. It is more than 8% year till date. IT remain the worst, even more than the small caps with 29% loss on the index, which explains why Nifty has underperformed Bank Nifty by more than 6% year till date. India is definitely doing better against its major peers. And as a matter of fact, India is the only market which has given positive return so far only after Brazil. So among the emerging country, among the developed nation, Europe, US, China, Taiwan, Hong Kong, all the markets are down till now except India and Brazil. Brazil is up by more than 6% approximately based on the Friday closing, and India Nifty is up by more than 1%, and Bank Nifty is up by more than 8% till date, year till date. So there are few factors that has helped the market go long in the Indian contest. So we can see in the last 2 months, Nifty has gained more than 12% on the backdrop of heavy buying from the FII of approximately 55,000 crore in just 2 months. So imagine 50-55,000 crore की pumping आई and Nifty 12% up हुई हमारी, and that is why the reason we are still almost we can say flat in performance term. 1% is a marginal gain because we are right now in September month. After China file out, India is well placed in long term as long as we do not have any major domestic serious issue in terms of negativity in the market. If we talk about some positive factors, so let's talk about some few positive factors in Indian contest. In last 2 months, FII has turned net buyers. They have turned net buyers of more than 55,000 crore after they have sold more than 2.45 lakhs in consecutive 9 months. FII ने अक्टूबर से बेचना चालू किया पिछले साल और जून 2022 तक आते आते they have sold almost 2-2.5 लाख करोड़ के आसपास उन्होंने बेचा है. बट इन ओनली 1 मंथ लास्ट अगस्त में 50,000 करोड़ और जुलाई में करीब करीब 5-1,000 करोड़ के आसपास की उन्होंने बाइंग की है. रिस्क सेंटिमेंट्स इंप्रूव हुआ है एटलीस्ट अगर मैं बात करूं डोमेस्टिकली. ऑयल प्राइसेस कम डाउन हुए हैं which has actually helped banks to outperform in the market because inflation is moderately under check in India. It has not exceeded more than 7.5% even at the peak of the Russia-Ukraine war, other issues, oil hitting high. So despite of that, inflation हमारी थोड़ी सी moderate रही है compared to other economies. The general understanding in the market is of the view that dollar and inflation are now peak. So we understand very simply that dollar index and inflation अब लगभग अपने peak पे हैं.
बॉन्ड यील्ड जो कि अभी 3.53% के ऊपर अभी ट्रेड कर रही है, जो कि अपने प्री पैंडेमिक लेवल पे है, 10 ईयर बॉन्ड की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो लगभग लगभग अपने नियर हाई पे हैं। एक बार फेड 100 बेसिस पॉइंट के आसपास रेट हाइक करके, लाइक फेड इज डन विद द रेट हाइक साइकिल, देन प्रोबेबली हम मार्केट और हमारी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि देन फेड मे टर्न लिटिल डॉविश, क्योंकि वहां से इन्फ्लेशन जो है वो हमें थोड़ी सी मॉडरेट नजर आती है। सो as we all know that market always discount future event with the current prices. So market is more or less has observed the rate cycle hike in the Fed, and all the major global concern currently as of now, अभी के हिसाब से देखा जाए तो जो भी हमारे करंट कंसर्न्स हैं उसको मार्केट ने लगभग लगभग अपने प्राइस में डिस्काउंट करके रखा हुआ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडियन मार्केट, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्लोबली। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अगर हम देखें तो बेल्टिक ड्राई इंडेक्स जो है वो 90% गिर चुका है अपने पीक से। तो बेल्टिक ड्राई इंडेक्स इंडेक्स इज बेसिकली एक्सप्लेन के जो सी में जो हमारा मूवमेंट है, उसका जो प्राइस है, उसका जो फ्रेट है, वो उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको डिनोट करता है। इसके गिरने का सबसे बड़ा कारण जो है वो ये है कि मार्केट में डिमांड्स कम आई है, सप्लाई साइड जो कमोडिटी प्राइसेस हैं उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है। तो ये दो बहुत बड़े फैक्टर हैं, कमोडिटी प्राइसेस के अंदर डिक्लाइन आना, डिमांड पीक होना, इंडिया के लिए काफी पॉजिटिव है। इंडिया को एक बेटर प्लेस करता है बिकॉज वी डू इम्पोर्ट लॉट्स ऑफ कमोडिटी फॉर अवर ओन कंजप्शन। हमारी जो कॉस्ट ऑफ फूड इन्फ्लेशन है वो भी लास्ट मंथ की जो हमारी इन्फ्लेशन डेटा आया उसमें मॉडरेट हुई है। ओवरऑल इन्फ्लेशन भी हमारी मॉडरेट हुई है। तो यहाँ पे एक अच्छा मानसून आया, मानसून की हमारे को उम्मीद है कि अच्छा मानसून हमारे को इस साल हुआ है। तो फूड इन्फ्लेशन में अगर ईज ऑफ हुआ, क्रूड ऑयल प्राइम ऑयल प्राइसेस में डिक्लाइन हुआ है, दे हैव डिक्लाइन बाय मोर देन 70% फ्रॉम इट्स पीक। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो पॉजिटिव इंडिकेट करते हैं इन्फ्लेशन साइड को। और अगर इन्फ्लेशन यहाँ पे मॉडरेट होती है तो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिशिएट है उस पे भी हमें एक पॉजिटिव नंबर देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। सो ये कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स हैं मार्केट के अंदर जो मार्केट कंसिडर कर रहा है इन द नियर टर्म फ्यूचर, इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म। नेगेटिव साइड्स की बात करें तो एज वी मेंशन्ड अर्लियर आल्सो, निफ्टी का पीबी रेशियो अभी भी काफी हाई है, अबव 4 है, विच एक्सप्लेन्स के व्हाई वी आर ओवरली वैल्यूड कंपेयर टू अदर मार्केट। हाँ, लेकिन पी हमारा काफी लोअर रेंज पे है, तो वो एक हमारे को एक कंफर्ट देता है कि हमारी अर्निंग यहाँ से एक्सपेंड होंगी, तो हमारा मार्केट में जो प्राइस कमांड है वो स्टॉक्स की और फर्दर एक्सपेंड हो सकती है। एफआईआई नेट बायर रहे हैं कैश सेगमेंट के अंदर, बट अगर डेरिवेटिव मार्केट की अगर हम बात करें तो वो अभी भी नेट सेलर हैं। दे आर स्टिल नेट सेलर ऑफ अराउंड 80,000 करोड़ काइंड ऑफ इन इंडेक्स फ्यूचर एज पर द लेटेस्ट अपडेट डेटा। तो एफआईआई कैश में तो बाइंग कर रहा है लेकिन इंडेक्स के अंदर सेलिंग कर रहा है। दैट इज वाई हमें देखने को मिल रहा है कि मार्केट में हर ऊपर लेवल पे सेलिंग आ रही है। एफआईआई भी सेलिंग कर रहा है, डीआईआई भी यहाँ पे नेट सेलर है, प्रोडेक्स भी अभी डेरिवेटिव डेटा के अंदर नेट सेलर ही है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हम इग्नोर नहीं कर सकते मार्केट के अंदर ऑन द नेगेटिव साइड। बहुत बड़े कोई मेजर डोमेस्टिक इवेंट अभी हमारे को इंडिया में नहीं है। दैट इज वाई मार्केट इज ड्रिवन बाय ग्लोबल इवेंट, मोर और लेस लाइक हाउ फेड इज वर्किंग, हाउ व्हाट इज डेटा कमिंग फ्रॉम द चाइना, व्हाट इज डेटा कमिंग फ्रॉम द यूएस। इसी के बेसिस पे एशियन और यूएस मार्केट जो है वो रिएक्ट कर रहा है। और जो एक सबसे बड़ा कंसर्न है जो गैस प्राइसेस की फ्लो का है, जो रशिया और यूरोप के अंदर जो एक शिप्ड वार जैसे हम कहते हैं, एक शैडो वॉर जो अभी चल रहा है, उसको मार्केट करना चाहिए बहुत गौर तरीके से देख रहा है। जो हमने फ्राइडे को भी देखने को मिला था कि जॉब डेटा का मार्केट, जॉब डेटा आने के बाद, मंथली जॉब डेटा आने के बाद डाउ 300 प्लस से -200 और 300 पॉइंट पे चला गया, बिकॉज गैसप्रोम ने कहा कि भाई अभी हम और एक दो हफ्ते तो है गैस अभी प्रोवाइड नहीं करेंगे यूरोप को। इंटरेस्टिंगली यूरोप तो इतना नहीं गिरा बट हाँ डाउ ज्यादा गिर गया। सो मार्केट इन न्यूज पे और इन इवेंट्स पे रिएक्ट अभी करता हुआ नजर आ रहा है। अगर ग्लोबली मार्केट में डिक्लाइन आता है तो ऑब्वियसली हमारा मार्केट इम्यून नहीं रहेगा, हमारा मार्केट भी गिरेगा। ये एक वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है मार्केट की। विक्स अभी भी 20 के आसपास है एंड इट हैज नॉट फॉलन बिलो 16 इन लास्ट 3 मंथ।
तो जो कंसर्न है मार्केट के अंदर वो अभी भी है। विक्स 23 पे लास्ट पीक करी थी और अभी भी 20 के आसपास है। तो जब तक विक्स मॉडरेट नहीं होती है वी कैन नॉट से कि वी आर आउट ऑफ द वुड्स इन द ऑन द डाउन साइड ट्रेंड। फर्दर रेट साइकिल हाइक हमें आरबीआई से एक्सपेक्टेशन है कि आरबीआई अभी यहाँ से रेट हाइक करेगा इन पैरिटी टू द यूएस। और अगर 50 बेसिस पॉइंट पे भी करता है तो मार्केट उस चीज को ऑब्जर्व कर लेगा। 1 या 2 दिन का एक जर्क ऑफ आ सकता है मार्केट के अंदर, बट वो मॉडरेटली प्राइस इन है इन टर्म्स ऑफ अगर हम कंजप्शन स्टॉक्स देखें और बैंकिंग स्टॉक्स देखें तो वो लगभग लगभग प्राइस इन है हमारे मार्केट के अंदर। सबसे बड़ा कंसर्न इस वक्त मार्केट में ग्लोबली और इंडिया में रहेगा फेड। फेड यूज्ड टू बी अ फ्रेंड, नाउ इट हैज बिकम इट्स वर्स्ट एनिमी। क्योंकि हॉकिश अभी है फेड। लास्ट जॉब डेटा के बाद से 50 बेसिस पॉइंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 50 बेसिस पॉइंट पे मिड ऑफ सितंबर में जो हमारी मीटिंग है पॉलिसी रेट की, शायद 50 बेसिस पॉइंट पे रेट हाइक हो और 75 बेसिस पॉइंट पे ना हो। तो हो सकता है कि फेड अभी 50 बेसिस पॉइंट और नवंबर में मोस्ट प्रोबेबली अनदर 50 बेसिस पॉइंट हाइक करके देन इट मे वेट फॉर मोर डेटा टू कम। अगर इन्फ्लेशन मॉडरेट होती है तो शायद वो लिटिल डॉविश अगर होता है तो मार्केट फिर उसको अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेगा और डिस्काउंट करेगा। बट अभी एज ऑन डेट मार्केट के लिए मोर हॉकिश फेड इज नेगेटिव फॉर द मार्केट। टेक्निकली जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि मार्केट अभी भी 18,000 को कंफर्टेबली ब्रेक नहीं कर पाया है। 40,000 इन द बैंक निफ्टी एंड 18,000 इन द निफ्टी। सो ये दो बहुत बड़े साइकोलॉजिकल लेवल है मार्केट के लिए फॉर फर्दर लेगअप करने के लिए। तो जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होते हैं हमारे लिए एक कॉज ऑफ कंसर्न रहेगा कि मार्केट वीक हो सकता है, वनरेबल हो सकता है फॉर एनी करेक्शन। गोइंग अहेड मार्केट में कंसोलिडेशन लगता है 17,200 17,800 की जो रेंज है, जब तक एक कंसीवली ब्रेकआउट नहीं देता है मार्केट। बहुत ज्यादा बियर अपने को नहीं लग रहा है मार्केट के अंदर या बहुत ज्यादा बुलिश अपने को नहीं लग रहा है मार्केट के अंदर। हमने एक चीज देखी है, रिसेंट फॉल ऑफ में मार्केट रिकवर हुआ है नीचे से डिस्पाइट ग्लोबल मार्केट नेगेटिव होने के बावजूद, जो कि ये बताता है कि मार्केट जो है वो बहुत बड़ा बियरिश स्टैंड लेने के लिए अभी शायद रेडी नहीं है। और एक कैपिचुलेशन हमको देखने को मिल रहा है मार्केट के अंदर। जो वीकर लॉन्ग्स हैं मार्केट ने उसको शेक ऑफ किया है और आने वाले समय में भी हो सकता है कि हमें एक आध डाउनसाइड मूव देखने को मिले एंड मार्केट शेक ऑफ द वीकर लॉन्ग्स एंड मे रिज्यूम फर्दर अपसाइड। दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। ओआई बिल्डअप को अगर हम देखते हैं तो मार्केट उतना ज्यादा कमिटेड नहीं है इस वक्त और बेसिकली इट इज जस्ट वेटिंग फॉर द नेक्स्ट साइकिल ऑफ इवेंट्स। मार्केट में किस तरीके से इवेंट्स आते हैं और अकॉर्डिंगली फिर मार्केट उसको रिएक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। आफ्टर लास्ट फ्राइडे जॉब डेटा जो हमारा आया है उसके बाद नेक्स्ट मिड ऑफ द मंथ में इन्फ्लेशन डेटा आएगा यूएस का, फेड का पॉलिसी रेट आएगा। तो ये कुछ डेटा है, इवेंट्स हैं, इनिशियल क्लेम्स हैं जो रेगुलर हमारे डेटा आते हैं, प्लस ओपेक की हमारा डिसीजन भी यहाँ पे पेंडिंग है। या ओपेक को हम डिसाइड कर सकते हैं कि यूएस ईरान की अगर डील होती है तो हाउ ओपेक इज गोइंग टू रिएक्ट एंड ऑयल प्राइसेस गो अप और डाउन। ये काफी कुछ फैक्टर्स हैं जो मार्केट कंसिडर करेगा फॉर द नेक्स्ट अपसाइड और डाउनसाइड मूव। Thank you for your time and for such analysis video that we are doing today, please like this video, subscribe our channel, share it. You can also follow our regular market updates on trading social platform front page. There is a link in the description. It really helps us as we grow in Trending Sutra to come and come with such more observation and such analysis video. So kindly subscribe us, keep watching us and like us. Thank you. Thank you for your time.